اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ہیرا گروپ فیملی اور میرے تمام سپورٹرز کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کو لائق اور زیبا ہے کہ جس پاک پروردگار نے آج مجھے آپ سب کو ایک اپڈیٹ دینے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا میں بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دی اور رمضان کی عبادتوں کی توفیق دی، اور آپ سب کو بھی عید مبارک وتقبل اللہ منا ومنکم۔ آج میرا جو اپڈیٹ ہے کمپنی کے کچھ باتوں کو لے کر، کمپنی کے کچھ اپڈیٹس کو لے کر، کمپنی کے کچھ حالات کو لے کر اور کمپنی کے کچھ سچائیوں کو لے کر میں آج کچھ باتیں آپ سب کو سمجھانا چاہتی ہوں، آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے احسان سے اور اللہ کی رحم و کرم سے اور ہمارے لیگل ٹیم کی محنت سے اللہ نے ہماری کمپنی کو پھر سے ایک بار زندہ ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس پر مجھے بھی آپ سب کو بھی اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے، بے حد، اور ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن کا بھی، کہ جس کانسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ رائٹس، ہم لڑ کر جو ہے ہمارے رائٹس کو ہم جیت کر انشاءاللہ ہماری کمپنی کو واپس رن کرنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے اپڈیٹ میں کورٹ کے تمام اپڈیٹس آپ کو بتاتی رہی اور کمپنی کے کیا کیا حالات ہیں وہ سب بتاتی رہی، اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ آگے چل کر کوئی اپڈیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر خاص کر سے میں نے کچھ باتوں کی ضرورت محسوس کی، آپ سب کو وہ باتوں کو سمجھانا ضروری سمجھی، کیونکہ جب آپ میری فیملی ہیں، آپ کچھ باتوں کو لے کر پریشان ہوتے ہیں تو مجھے دل کہتا ہے کہ میں آپ کو ان باتوں کے بارے میں سمجھاؤں۔ اور اللہ کا بہت بڑا فضل تھا کہ جیسے جیسے کمپنی کے کام ہوئے وہ سب آپ کو معلوم ہی ہے کہ کافی چیزوں کو کافی تکالیف کے ساتھ حاصل کرنا پڑا، اپنے خود کے چیزوں کو، اور کمپنی کو جو بھی مشکلیں ہوئے تھے ایک لیگل طریقے سے ہوئے تھے، تو ظاہر سے بات ہے کہ 3 سال کمپنی کو بند رکھنے کے بعد اس کو سٹارٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ پھر بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری کمپنی سٹارٹ ہوئی۔ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا رمضان کے مہینے میں آپ سب کے پیمنٹ انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں پیمنٹ سٹارٹ ہوں گے اور رمضان کے مہینے میں ہی میں ختم کر دوں گی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں الحمدللہ کسی بھی حالت میں آپ کے پیمنٹ سٹارٹ ہوں گے۔ اللہ نے میری وہ بات کو رکھا، اور اللہ رب العالمین کے طرف سے رمضان کے مہینے میں کافی لوگوں کو جو ان کے ریکوائرمنٹ پہ تھا، ان کے ریکویسٹ پہ تھا کہ آپا ہم کو کمپنی کی طرف سے 5% دے دو، کمپنی کی طرف سے 10% دے دو، کیونکہ ابھی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ کافی ہزاروں کے لوگوں تک ماشاءاللہ جو ہے کمپنی نے جو ہے وہ رمضان نیڈی ریکویسٹ کو الحمدللہ پورا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 کا سیکنڈ ویو چل رہا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ کام ہو رہے ہیں، سٹاف بھی اویلیبل نہیں ہے،
اور خاص کر سے جو ہے آفس کو کھول کر کنٹینیوسلی رن کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی جو بھی کووڈ 19 کے سچویشن میں ہمارے پاس ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، الحمدللہ کمپنی ان کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ مدد کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں کا پاسبل ہے اس کو سیٹلمنٹ کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ کئی لوگوں کو گولڈ کا بھی جو ہے اللہ کے فضل سے جو ہے الحمدللہ سیٹلمنٹ ہوا ہے. اور اس پر میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی کامنٹس آ رہے ہیں کہ ابھی پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے، ابھی پیسہ نہیں ملا جا رہا ہے. کبھی لوگ جو ہے جان بوجھ کر لکھتے ہیں کہ پیسہ کب دو گے، پیسے کب دو گے. تو میری ہیرا گروپ فیملی اور سننے والے لوگ، میں سب کو یہی بات سمجھاتی ہوں کہ ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہمارا پیسہ ہیرا گروپ میں لگ گیا ہے، ہمارا پیسہ کمپنی میں لگ گیا ہے، ہمارا پیسہ کمپنی میں ہے. تو پھر یہ بھی کیوں نہیں بتاتے کہ کمپنی نے آپ کو کتنا پیسہ آج تک دیا ہے، اور کمپنی نے آج تک اتنے جو پچھلے 15 سال 20 سال کے پرفارمنس میں آپ کو کبھی بھی کمپنی نے پیمنٹس کو ڈیلے نہیں کیا، نہ آپ کے وڈرال کو ڈیلے کیا، نہ آپ کے ایمرجنسی وڈرال کو ڈیلے کیا. کمپنی تو یہ سب کچھ بھی دیتی آ رہی ہے، اور کمپنی نے آپ کو کمائی بھی دی ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کمپنی میں 5 لاکھ لگا کر 10 لاکھ کھا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ کمپنی چیٹنگ کی اور کمپنی ہم کو پیسے دینا ہے. تو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہیرا گروپ کا مقصد کیا ہے. ہیرا گروپ ٹوارڈز آن انٹرسٹ فری ورلڈ. ہیرا گروپ کا مقصد جو ہے یہ ایک انٹرسٹ فری ورلڈ ہے. انٹرسٹ سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، اور تجارت کو اور انٹرسٹ کو بہت ہی زیادہ فرق ہے. جیسے اللہ رب العالمین جب قرآن مجید میں انٹرسٹ کے بارے میں آیت کو نازل فرما کر یہ کہا گیا کہ جو کوئی بھی سود کو لیتے ہیں اور دیتے ہیں اس سے میرے اور میرے رسول کے جو ہے لڑائی کا اعلان ہے، تو اس وقت جو ہے وہاں کے لوگ جو سنے تھے انہوں نے سوال کیا تھا کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت بھی تو ویسی ہی ہے، تجارت میں بھی تو پیسہ منافع آتا ہے تو منافع دیتے ہیں، اور یہ انٹرسٹ میں بھی جو ہے کہ انٹرسٹ دیتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین نے اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کی نیت جو ہوتی ہے، اور یہ نیت بہت ہی الگ نیت ہوتی ہے، اور جو انٹرسٹ کی جو نیت ہوتی ہے یہ نیت بالکل سے بالکل الگ ہوتی ہے. انٹرسٹ کی نیت میں انسان پیسے دیتا ہے اور مہینہ اس کا وصول کرتا ہے یا سال میں وصول کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو اصل پیمنٹ کے اوپر جو ہے گارنٹی لگی رہتی ہے کہ ہاں وہ مجھے ملنا ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے حرام کر دیے. اس کے لینے کو بھی اللہ نے حرام کیا، اس کے دینے کو بھی حرام کیا. اور ہماری کمپنی انٹرسٹ نہیں تھی، ہماری کمپنی تجارت تھی، ہماری کمپنی بزنس تھی. اور آپ لوگ سب بزنس کے اندر آئے ہیں، تو بزنس کا مقصد ہی، بزنس کی نیت ہی، جس کے اندر نفع بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر رسک بھی ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سارا پیمنٹ جا بھی سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 1% کو 100% کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ پچھلے دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے کمپنی کو جو ہے فائدہ ہی ہوا ہے. آپ نے کبھی بھی جو ہے نقصانات نہیں اٹھائے ہیں، اور آپ کو جو بھی فائدہ ملا ہے، جو بھی پروفٹ ملا ہے، جو بھی بینیفٹ ملا ہے، وہ بینک کے تھرو ملا ہے اور آن ریکارڈ ملا ہے. اور کہیں سے بھی اس کمپنی میں جو ہے کوئی چیٹنگ کی مقصد نہیں ہے. اور جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ہرس بتا دی گئی تھی، ہم کو زیادہ سے زیادہ منافع کا یہ بتا دیا گیا تھا، ہم کو ڈبل ہونے کا بتا دیا گیا تھا، ہم کو ٹربل ہونے کا بتا دیا گیا تھا. آپ اچھے سے جانتے ہوں گے، آپ میرا ہر ویڈیو واچ کریے. جس دن سے کمپنی شروع ہوئی ہے میرے کوئی بھی ویڈیو میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو 1 کا 2 مل جائے گا، 3 مل جائے گا، نہیں. میرے ہیرا گروپ فیملی، میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ یہ کمپنی ہے، اور کمپنی کا جو فارم آپ نے سائن کیا تھا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ نفع اور نقصان میں بھی جو ہے آپ حصے دار ہیں. الحمدللہ میرے کافی ممبر جو ہے اس بات کو مانتے بھی ہیں، اور اس بات کے لیے مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں کہ آپا جو بھی آپ ڈکلیئر کریں گے اور اس کے لیے ہم ریڈی ہیں. ابھی آپ یہ گھر کا مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی یوٹیوب پہ بول رہے ہیں تو آپا کیوں ارجنٹ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، کہیں پر کوئی کامنٹ کر رہے ہیں تو آپا کیوں اس بات کا یہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ڈکلیئر کرنا ہے تو پروفٹ اور لاس کیا ہے جلدی سے جلدی ڈکلیئر کر دو. یہ ایسا نہیں ہے، یہ کمپنی ہے، ایک بڑی کمپنی ہے.
इसका बिजनेस है और रनिंग बिजनेस से मुझे उठाया गया था। मैं आने के बाद में कई हमारे फूड प्रोडक्ट जहां जहां गोडाउन में थे टोटली थ्रो करना पड़ा, क्योंकि वो बेच नहीं सकते। 3 साल के बाद तो उनके डेट वगैरह सब कुछ भी जो है एक्सपायर हो जाते हैं। कई टेक्सटाइल हमारे गोडाउन में पड़े हुए थे और गोडाउन में पड़े हुए हैं आज भी, और कई जगह पर नेशनल भी इंटरनेशनल भी सब जगह भी पड़े हुए हैं। और उसमें भी जो है काफी डिजाइनिंग जब पुराने हो जाते हैं वगैरह सब कुछ भी, तो उसमें काफी चीजें होते हैं। अब मैं अचानक ये कैसे कह दूंगी कि इसमें कितना पैसा मुझे निकलेगा और कितना पैसा नहीं निकलेगा, और मुझे इसके लिए टाइम लगता है ये सारे चीजें भी डिक्लेयर करने के लिए, इसके लिए मुझे टाइम लगता है ये सब कुछ भी सोचने के लिए। मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, मैं ये चाहती हूं कि जब वीडियो में सिर्फ यही बोलते हो कुछ लोग जो है खाली यही बोलते रहते हैं कि हीरा ग्रुप पैसे देना है, हीरा ग्रुप ने लोगों के पैसे से चाय पी लिया, हीरा ग्रुप ने जो है लोगों के पैसे से कपड़े पहन लिया, हीरा ग्रुप ने जो है वो फंक्शन जो है इनके पैसों से कर लिया, हीरा ग्रुप ने जो है पॉलिटिकल पार्टी इससे कर लिया वगैरह, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो है मैं सुनती आ रही हूं। मेरा इसमें जवाब एक ही है कि जब हीरा ग्रुप ने जो है तुमको 1 लाख के 4 लाख, 1 लाख के 5 लाख, 1 लाख के 2 लाख, 1 लाख के 1 लाख, कम से कम 80 से 90% लोगों को मिल चुके हैं, तो फिर हीरा ग्रुप के जो पैसे मिले थे, हीरा ग्रुप से जो मुनाफा तुमको मिला था, वो किसके पैसे थे? वो कंपनी ने कमा कर दिया है ना। एक भी बंदा कहीं पर भी वीडियोस में ये बात नहीं बोलते कि हीरा ग्रुप में हमें इतना फायदा हुआ है, हीरा ग्रुप में हम इतने सालों से थे और हीरा ग्रुप में हम इतने सालों से जो थे जुड़कर, तो हमें हीरा ग्रुप के जरिए से हमारा घर चलता था, सब कुछ चलता था। मगर सीईओ के अरेस्ट होने के बाद में हमें ये तकलीफ आई, ये प्रॉब्लम आई। मगर आज भी मैं अल्लाह के फजलो करम से चैलेंज करके आपको बोलती हूं कि आप हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी लाकर बताइए कि जो 3 साल उसको पूरा लॉक कर देने के बाद, बंद कर देने के बाद, टोटली डैमेज करने का पॉलिटिकल बेस के ऊपर मुझे करने के बाद भी आप लोगों को पैसे देने की बात आकर मैं सामने कर रही हूं, और मैं आपको बता रही हूं कि इंशाअल्लाह थोड़ा टाइम आगे पीछे होता चला जाएगा, मगर सबके भी पेमेंट अल्लाह के फजल से मिलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब मैं आज के वीडियो में आपको एक बात डिक्लेयर करना चाहती हूं, जिनको पैसा 100% मिल चुका है, जिनका पैसा 200% मिल चुका है, जिनको 500% भी मिल चुका है, मगर वो भी आप पैसों की आस लगाकर इस हालत में बैठेंगे, तो फिर वो गलत सोच रहे हैं। अब मैं उन लोगों का पैसा देने की कोशिश कर रही हूं कि जिनको अभी पैसा कंपनी से मिला नहीं था और नया नया उन्होंने बिजनेस में लगाए थे, और उनका भी क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से शेड्यूल होगा, इंशाअल्लाह कंपनी जो है एक शेड्यूल को छोड़ेगी। जो कंपनी 20 साल मेहनत की है, जो कंपनी 20 साल से लोगों को अमानतदारियां अदा की है, और कभी भी कंपनी ने आपको ये नहीं कहा। हाँ, कुछ लोगों का ये भी मुझे मेल आया है, मैं ये सुनकर हैरान हो जाती हूं, मैं सुनकर देखकर परेशान हो जाती हूं कि जिस कंपनी ने आज तक जिंदगी में कभी बैंक में 1 रुपया लोन नहीं लिया, क्योंकि उसमें सूद इंक्लूड हो जाएगा और तिजारत में जो है कि सूद इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए मैं हरगिज नहीं लिया, और ना इंडिया में, ना इंटरनेशनल में, ना कहीं भी मैंने 1 रुपये का लोन नहीं लिया। और खासकर से आपको मालूम है, आज तक कंपनी ने क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया कि उसमें भी जो है इंटरेस्ट के मामले आ जाते हैं करके बोल के। अभी कुछ फैसिलिटीज निकले कि 100% पेमेंट रखकर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं करके बोल के, तो इंशाअल्लाह उस पर यह कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतना इस बात को सोच रही थी। मगर बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया कि आपा हमने कंपनी में जो है बैंक से इंटरेस्ट को लेके पैसे लगा दिया था, अब हम उसका ड्यूज भरना है। हमने नहीं कहा था आपको इंटरेस्ट को लेकर पैसे लगाने के लिए। कभी भी हीरा ग्रुप ने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा सारा सरमाया जो है हीरा ग्रुप में लगा दो, और कभी हीरा ग्रुप ने नहीं कहा था कि, कभी ऐसा नहीं कहा था कि तुम इतने पैसे लगा दो, उतने पैसे लगा दो। जब भी तुम लगाते थे तो तुमको सोच समझ कर लगाना होता है कि एक तिजारत होती है, वो तिजारत चलती है और उसके अंदर नफा और नुकसान भी हो सकता है, उसमें डिले भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे चीजें आ सकते हैं। इस सबको सोचना जो है बहुत ही जरूरी है। आज सोशल मीडिया पे गए, कोई एक वीडियो बना के डाल दिए कि हाँ मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आपा से रिक्वेस्ट कर दो कि पैसे दे दो।
क्या ऐसा पॉसिबल है कंपनी में? एक कंपनी प्रोफेशनली तरीके से हैंडल हो रही है, एक कंपनी प्रोफेशनली लाइन से चल रही है, एक कंपनी पैसा किस तरीके से देना, कैसे देना, उसका पूरा प्लान कर रही है और साथ में रहने वालों के लिए प्लान कर रही है कि किस तरह से आगे का बिजनेस जो है उनके लिए कंटिन्यू करना, ये सब कुछ करना। कभी कोई आधी रात में जो है बोल देते हैं कि यहां पर जो है वीडियो वायरल हो गया, वहां पर जो है व्हाट्सएप पे वीडियो आ गया, वहां पर जो है ये आ गया। अगर वो मेरे सच्चे मेंबर है तो मैं ये बात कहना चाहती हूं कि इस तरह से सोशल मीडिया पे जाके पैसे मांगना, फिर वो तुम्हें पैसे मिलते हैं तो जो सोशल मीडिया का चैनल था उनको आप पार्टनर बनाकर हिस्सा देना, सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ पता होता है मुझे। तो ऐसी सब कुछ काम करना, ये काम करने से जो है कंपनी के लिए कोई फायदा नहीं है, ना आपका कोई फायदा है। कंपनी इंशाअल्लाह आपको देने के लिए तैयार है और वीडियोस बनाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपा कहां गई, किधर गई है, अभी तक किधर नहीं दिखी। क्या आप लोगों को इस बात की समझदारी नहीं है? अगर आप सच्चे विक्टिम को इंसाफ दिलाने वाले हो तो फिर कई बैंक्स बंद हो गए हैं जो डिपॉजिटर एक्ट था, जिसके अंदर बैंक का मतलब अलग होता है, तिजारत का मतलब अलग होता है। कंपनी में जो लगता है पैसा वो तिजारत के लिए होता है, उसमें नफा और नुकसान होता है। बैंक में जो पैसा लगता है वो सिर्फ डिपॉजिट होता है, जब मांगेंगे कस्टमर को देना होता है। ऐसे बैंक जो है लाखों के करोड़ उठाकर जो है भाग गए, कोई अरेस्ट हो गए, सब कुछ कर दिए तुम्हारे सामने। इन सालों के अंदर 10 से 15 बैंक, 10 से 15 कंपनीज जो है उठा दिए और भाग गए, इंटरनेशनल को चले गए, कहां चले गए। उनके बारे में आप लोग वीडियोस नहीं बनाते, क्यों? मैं एक मुसलमान औरत हूं, मैं नौहिरा शेख हूं, मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, मैं किसी को अगेंस्ट में गाली देना नहीं चाहती। क्यों? कि मैं मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को अमल करती हूं और मेरे अल्लाह के हुक्म पर मैं अमल करती हूं। कि क्योंकि किसी को सताना, किसी को गाली देना, किसी को बदनाम करना और किसी की बेटी को बदनाम करना, किसी की बहन को बदनाम करना कितनी बड़ी गलत बात होती है, वो कितना बड़ा गुनाह है वो मुझे पता है। इसलिए जो है मैं हर किसी इंसान के लिए सोचती हूं कि अगर अचानक हम इसको नुकसान पहुंचा देंगे तो उसके बीवी और बच्चों का क्या होगा, उसके घर का हाल क्या होगा। अगर हिम्मत है, विक्टिमों के लिए वीडियोस बनाने की हिम्मत है, तो रियल में जो भाग चुके हैं अपने ऑफिसेस बंद करके, अपने कंट्रीज को छोड़ करके, और उनको आप लड़कर विक्टिमों को इंसाफ दिलाइए। आप उनके बारे में वीडियोस छोड़िए। मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे जो हीरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूं कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे भाग नहीं सकते कि आपको कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, क्योंकि कंपनी ने कभी हाथ में उठाकर प्रॉफिट नहीं दिया है, बैंक के थ्रू दिया है। एक बटन मारेंगे आपको कौन से डेट में कितना पेमेंट मिला है आ जाएगा। मैं ये कोर्ट को सबमिट करूंगी जरूर से इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं क्या चीटर हूं? क्या मैंने चीट किया है? मैंने एहसान किया है। क्या मैंने चीट किया है? क्या मैंने तिजारत किया है? क्या मैंने चीट किया है? क्या मैं आप लोगों के लिए पेमेंट्स देने के लिए आज भी रात और दिन में मेहनत करती हूं। कोविड-19 का सिचुएशन आ गया, टोटल जगहों पर लॉकडाउन हो गए, और लॉकडाउन हो जाने के बाद बैंकिंग का वर्क कैसे चलेगा? लॉकडाउन होने के बाद 2-3 घंटे बैंक होती है, उसमें भी जितना पॉसिबल है, जैसे पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूं। तो मैं कैसे करूंगी? स्टाफ कोई आने को तैयार नहीं होते हैं और चेक करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है, बहुत सारे। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बगैर वेरिफिकेशन के तुम उठाकर जो जितना मांगे उसको दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे वेरिफिकेशन करने का परमिशन दिया है। अगर कुछ कमी पेशी है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करती हूं। और भी मैं कुछ बातें न्यूज सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो है, मैं कौन होती हूं सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने वाली? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की मां, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रॉपर्टीज उनके नजर में ही, हमारा पैसा उनके नजर में है, हमारे जो भी सोर्सेस ही उनके नजर में ही, हमारे जितने लोगों को देना वो भी कोर्ट के नजर में है, सब कुछ कोर्ट के नजर में है। तो कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है। अब जो है कोई भी गली गली में बैठकर बोलते रहे हाँ हम अब ये कर देंगे, हम अब वो कर देंगे, हम कोर्ट में ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे,
क्यों मना करता है? जो लीगल जाना चाहते हैं, जो लीगल अप्रोच होना चाहते हैं, जो लीगल फाइट करना चाहते हैं, तो लीगल फाइट के लिए तो नौहीरा शेख हमेशा तैयार रहती है, कभी उससे वो पीछे नहीं होती। और इंशाअल्लाह वो इंसाफ की जिंदगी जीना चाहती है और इंसाफ आपको बताना चाहती है। इंसाफ यही है कि हीरा ग्रुप ना तुमको चीटिंग की थी, ना आज चीटिंग करेगी। और हीरा ग्रुप जो है इंशाअल्लाह जो तुम्हारे पेमेंट के शेड्यूल को तैयार कर रही है और तुम्हारे पेमेंट के शेड्यूल को बहुत जल्द हीरा ग्रुप इंशाअल्लाह छोड़ेगी। उन शेड्यूल के बराबर आपके अकाउंटों में जो है आपको पैसा मिलेगा। अभी भी काफी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट मिल चुका है और ये कह रहे हैं कि नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। वो जो बोल रहे हैं वो हमारे कुछ मेंबर ही नहीं, और वो खासकर से बदनामी करने के लिए यूट्यूब पे बोलते हैं। क्या मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कितने लोगों को अपॉइंट करके छोड़ा गया है कि सिर्फ उनका काम जो है हीरा ग्रुप को बदनाम करना, नौहीरा शेख को बदनाम करना और उनको बुरी बुरी बातें बोलकर उनके लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाना। जो भी बुरी भली बातें यूट्यूब पे बैठकर गलत सलत बोलते हैं और मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को जो तकलीफ पहुंचती है, जो भी मेरे सपोर्टर सच्चे हैं उनको जो तकलीफ पहुंचती है, एक एक दिल के तकलीफ का बदला कल क़ियामत के दिन भी अदा करना पड़ेगा, दुनिया में भी अदा करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दुनिया में भी लीगल के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, मगर आखिरत में भी बेशक अल्लाह उसका जो है उनको ये देगा जो बगैर सोचे समझे गलत सलत बातें करते बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको यही बात कहना चाहती हूं कि हीरा ग्रुप की सीईओ तुम्हारे सामने है, हीरा ग्रुप के ऑफिसर्स तुम्हारे सामने हैं। अब जो है घबरा कर अचानक हाइपर टेंशन होकर कि अरे अभी तक जो है हीरा ग्रुप में इतने पैसे कैसे नहीं मिले और हीरा ग्रुप सबका पैसा अभी तक क्यों नहीं लौटी, हीरा ग्रुप में अभी तक पूरे ट्रांसफर कैसे पॉसिबल नहीं है? क्यों कि 25 साल से जो लेन देन हुआ है, आप भी एक बार नहीं आए हैं एक बार जाने के लिए। आप 25 बार कंपनी में आए हैं, 10 बार कंपनी में आए हैं, 5 बार कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं। आप आज बोलेंगे कि पूरा एक बार दे दो, तो एक बैंक भी उस तरह से नहीं दे सकती। तो इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठे हैं, लीगल टीम भी उसके साथ में बैठी हुई है। इंशाअल्लाह एक प्यारा सा शेड्यूल आपके लिए अल्लाह के फजल से तैयार हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उस शेड्यूल के तहत आप पेमेंट लेना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप भी वापस रन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में रन होगी इंशाअल्लाह, इससे ऊंचे पैमाने पे रन होगी और भी ज्यादा इंशाअल्लाह बिजनेस अल्लाह के फजल से हीरा ग्रुप करके रहेगी। मगर जो है आप ऐसी बातों को जगह मत दीजिए और ऐसे कमेंट्स को आप जगह मत दीजिए कि ऐसे बातों को आप मत सुनिए कि जो है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर अरे किसी को 1000 रुपये दे दो तो यूट्यूब में जो वीडियो चाहे छोड़ दे, तो क्या कंपनी की सीईओ क्या अपनी पॉलिसी को उस बंदे के कहने पे चेंज कर सकती है? अगर किसी को यूट्यूब पर बिठा दो वो कुछ भी बोलने को शुरू कर देंगे, तो क्या आप यूट्यूब को देखकर मैं कंपनी चलाऊंगी? बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि कितने लोगों को पेमेंट जा रहा है, हमको क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं बता रहे? मेरे भाइयों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली प्रवेशी होती है कंपनी की, एक प्रवेशी पॉलिसी होती है। सुबह से शाम तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सुबह के 6 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 बजे तक बैंकिंग का वर्क चलता है और बैंकिंग का वर्क चलने के लिए मैं बिजी शेड्यूल रहती हूं और हजारों के लोगों को, सौों के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट जाते रहते हैं। क्या मैं वो डिस्प्ले कर दूं? हाँ मैं करूंगी। कहां? सुप्रीम कोर्ट के सामने करूंगी, आपके ऑनलाइन ट्रांसफर नंबर के प्रूफ के साथ करूंगी, आईबीजी नंबर के साथ मैं करूंगी। मैं लोगों को यूट्यूब के ऊपर, मैं ये मेरी बहनों भाइयों मैं नहीं बता सकती कि मैं कितने लोगों को दी हूं, कितने लोगों को क्या किया है। आजकल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप भी जो है सिक्योर नहीं है कि हर जगह जो है बैठकर बोले कि मेरे इतने पैसे लगे ही, इतने पैसे डाली थी, इतने पैसे मिले ही। यहां तक कि आजकल मुझे खुद के कॉल आते हैं कि फैमिलीज में वो लोग सेफ नहीं है। कई लोग मेल करते हैं, कई लोग बताते हैं आपा जो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा वो आप जो है उनको नहीं बताना, इनको नहीं बताना। और भी मैं आपको एक बात को बताना चाहती हूं कि कोई बोल रहे हैं हमारे पास 10 सर्टिफिकेट है, कोई बोल रहे हैं हमारे पास 20 सर्टिफिकेट है, कोई बोल रहे हैं हमारे 5 सर्टिफिकेट है। मेरे पास आप सब इंडिविजुअल आए थे, अकेले आए थे, किसी की सर्टिफिकेट में कोई और इंक्लूड नहीं है। मेरा भी बैंकिंग के सिस्टम के जैसा है। आप जो है मेरे पास 20 है, 25 है, मुझे उनके बारे में बताओ, इनके बारे में बताओ। हमारे वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट को भी हरासमेंट करना, हमारे सेटलमेंट डिपार्टमेंट को कॉल करके हरासमेंट करना, कॉल सेंटर में कॉल करके हरासमेंट करना, इसका भी बता दो उसका भी नहीं। जो बंदा ना
काम वाला होता है, जिसका आईबीजी नंबर होता है, वो बंदा ही पूछ सकता है हमको, उसी को अधिकार है। जब वो पूछेगा हम उसको परफेक्ट उसका जवाब देंगे। उसका बैलेंस क्या है, उसका पेमेंट क्या है, क्या उसको वापस मिलने वाला कितना है, हमारे पास बैलेंस क्या है, हम उसी बंदे को बताएंगे। हम पूरी दुनिया को नहीं बताएंगे। कोई अगर इवन एक बहन का इंक्वायरी और एक बहन करेगी तो कंपनी वो नहीं बताएगी। अगर शोहर की इंक्वायरी बीवी करेगी तो वो इंक्वायरी नहीं बताएंगे, और हम उनको ही इंक्वायरी बताएंगे, हम उनको ही बताएंगे जो हमारे रियल कस्टमर होते हैं। कॉल सेंटर काम नहीं कर रहा है, एक बंदा बोल देता है बड़ी इजी से। कॉल सेंटर पर माशाअल्लाह एक दिन में कितने हजार कॉल आ रहे हैं, वो मैं सुनती हूं डेली अल्लाह के फजलो करम से। और उसमें कोई शरारत करने के लिए भी 10-15 लोग आते हैं कि कॉल सेंटर में गलत गलत बातें, जो कॉल सेंटर पे बैठे हैं वो स्टाफ को भी हरास करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर वो अब हमने उसका एक सिस्टम बना दिया है, जो भी कॉल सेंटर पे आकर गलत बात करना, गंदी बात करना या बैठने वालों को अब्यूज वर्ड यूज करेंगे तो फौरन वो कॉल का रिकॉर्डिंग जो है फौरन पुलिस को जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप ये समझते होंगे कि हाँ पुलिस को फॉरवर्ड हुआ तो क्या हो जाता है, अभी नहीं होगा, अर्जेंट में नहीं होगा, मगर जिस दिन एक्शन लिया जाएगा तो जरूर जो है हिंदुस्तान के लाभ पे भरोसा है, वो जरूर जो है वो एक्शन जरूर से जरूर होगा। अब यूट्यूब में कोई भी बैठे गालियां दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फैमिलीज को गालियां देते हैं, रिश्तेदारों को गाली देते रहते हैं, और हीरा ग्रुप फैमिली को गाली देते रहते हैं, उनको दल्लाल, इनको दल्लाल, उनको ये फलाने फलाने बोलते रहते हैं। जो बैठ के बोलते हैं वो खुद दल्लाल है, हमको गालियां देने के दल्लाल है, हमको बातें करने के दल्लाल है। मैं आज ये बातें सब आपको अपडेट देना नहीं, आपको समझाना जरूरी समझी कि आप बिजनेस में आए ही, आप तिजारत में आए ही, आप सब्र से रहिए। इंशाअल्लाह आप सबके, जितने लोगों के भी, बहुत सारे लोगों के पेमेंट स्टार्ट है, हो रहे हैं, अब जितनों के भी बैलेंस है वो भी इंशाअल्लाह हो जाएंगे। एक टाइम लगेगा, आप समझो 25 साल से जब रनिंग है कंपनी, तो टाइम क्या 1 साल 1.5 साल नहीं लग जाएगा लोगों को पेमेंट करने के लिए। यानी टोटल हम लोग जितने भी लोग मांग रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, तो लग ही जाएगा किसी भी हालत से। यही एफिडेविट हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट किया है कि हमको इतना टाइमिंग लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा अगर जो कंपनी के पॉलिसीज जिसको पसंद नहीं आते हैं, अब वो ये बोलते हैं हम यहां चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको कोई भी रोको मत, क्योंकि जिनको जो करना है वो कर सकते हैं। और बाकी ये भी बोलना कि हाँ अब ऐसा होने वाला है, नौहीरा शेख फिर से वापस जो है जेल में जाने वाली है, ये करने वाली है। अरे भाइयों मेरे, अगर मेरे जेल में जाने का इतना ही आपको शौक है, इतना ही ये है, जो भी है आप बोलते रहते हैं, पहले दिनों से बोलते थे कि वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी, अब बाहर रहूं तो बोलते हैं कि वो अंदर जाएगी, और फिर से हम लोग प्लान कर रहे हैं सब कुछ। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अंदर भी अल्लाह की जात पे भरोसा करती थी, मैं आज भी अल्लाह की जात पे भरोसा करती हूं। मेरा एक दिन का खाना पीना, मेरे 1 मिनट का जीना, मेरे 1 मिनट की जिंदगी अल्लाह ने कहां लिखा है वहां पे ही गुजरेगी, ये मेरा यकीन और ये मेरा भरोसा है। मगर मैं जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, मैं तुम्हारे अमानतों को पूरे करने की मैं कोशिश करती रहूंगी, इंशाअल्लाह करती रहूंगी। अल्लाह के फजल से कोशिश चल रही है, और मैं वाकई हीरा ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह रीस्टार्ट करके पूरे वर्ल्ड में इसके बिजनेस को इंशाअल्लाह ले जाने की मैं कोशिश करूंगी। उसके भी हमारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स जो है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह चल रहे हैं, और आइंदा के लिए भी जो प्लान होगा मेंबर्स के लिए इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है अल्लाह के फजल से फार्म होगा। क्योंकि मैं ऐसी वैसी बातें जल्दी जल्दी में ऐसे वैसे फैसले करके आपके सामने सेंड कर दूं, फिर उसके बाद मैं उस चीज के ऊपर ना चलूं, तो फिर मुझे ये कभी भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरी बात बोलना जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए सीसीएस से मुझे आज तक भी डेटा नहीं मिला, मगर आपके लिए डेटा जो है गोडाडी से मैंने ये करके फाइट करके जो भी जैसे जरूरत हुई, जितना मतलब मुझे पॉसिबल हो सका आपके वेरिफिकेशन के लिए, आपके पेमेंट्स के लिए कम से कम
اتنے ڈیٹے کو لیا ہے میں نے، اور بھی ڈیٹا ہم کو جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے الحمدللہ ملنے والا ہے، اور میں ضرور سے ضرور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتی ہوں کہ میری باتیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ہر کسی سے کوشچن پوچھتے رہیں گے، ہر کسی سے سوال پوچھتے رہیں گے، آپ کو جواب اس کا نہیں ملے گا۔ اور کمپنی ہے، کمپنی کا کال سینٹر ہے، کمپنی کے لوگوں کو جو ہے آپ انشاءاللہ کال کریں، اور ممبر ہی کال کرے گا تو جواب دیں گے، اور میں بھی وہی کروں گی۔ جو میرا ممبر ہوگا، جو میرا ممبر اپروچ ہو جائے گا، میں اس کو بات کروں گی۔ اور کوئی یہ بولے گا میرے پاس 20 سرٹیفکیٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے ایجنٹ گیری تیار کر کے رکھ لی ہے کہ بھئی ہم لوگ تم کو پیسے دلا دیں گے۔ مجھے کتنے کال آ گئے، جن کو پیسے ملے بیچارے ان کو فون آ جا رہے ہیں کہ ہمارے طرف سے تمہارے پیسے ملے، ہم کو اس میں سے 50% دے دو، ہم کو اس میں سے 25% دے دو، اور ان کے میسیجز میرے پاس موجود ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے اس طرح سے۔ تو میں میری بہنوں، میری ہیرا گروپ فیملی، میں اگر کچھ بھی آپ کو ان باتوں میں سے غلط لگا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، مگر میں جو بات آپ سے کہی تھی وہ شریعت تھا، وہ اسلام تھا، اور وہ بات سچائی تھی، اور اس کو ماننا پڑے گا۔ نفع اور نقصان کو، ہر چیز کو، ڈیلے کو، سب کو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آپ کا صبر جو ہے آئندہ کے دنوں میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے جو بھی فیچر ہے اس فیچر کے لیے بہت ہی انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتی ہوں کہ اللہ انشاءاللہ قیامت کے صبح تک اللہ تعالیٰ جو ہے ہیرا گروپ کو اللہ رب العالمین چلائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔